समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थवान वृद्ध और नारियां रहे सदा, बड़े बड़े वनों की शान ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है।
सुभाष आने हिंद है, सुभाष माने हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गई। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गई। सुभाष जी। योग डालता है शरीर में नए प्राण, इसे अपनाकर करे नवयुग का निर्माण। Good morning to one and all. Welcome to our final session of a 7-day long program for the celebration of International Day of Yoga 2021. The aim of this workshop was to spread and promote yoga throughout India, in which we have succeeded. The workshop started from 14th of June, and today is the final day of this event. We are glad to inform you that there were over 1,500 plus registrations and over 1,000 participants who joined the workshop. Every morning, all the attendees joined the session and actively participated in the workshops, making this a successful event. Yoga has always been helping so many people over a very long period of time. It helps people grow better physically, mentally, and spiritually. To celebrate the past of yoga, promote the effectiveness of yoga in the present, and to encourage people to do yoga in future. Today, on the occasion of International Day of Yoga, we are conducting the final session of this yoga workshop. It may be the final session of our 7-day long program, but let it be the beginning of your amazing journey of yoga. Unity in diversity has always been the strength of India, no matter how we all may vary from each other in so many different ways. But when the time comes, we come together to help and support each other. This has not only been proved right once, but many times. Initially, this event was only a thought, an idea by NSS cell of NSUT, which was turned into reality with the help of other NSS units. With a very warm heart, I welcome Ojaswini Dubey, Program Coordinator of SRM, University of Sikkim, and Nyamgal Sarpa, Nodal Officer at Government Senior Secondary School Keswing, South Sikkim, who have worked with us under Ek Bharat, Shresht Bharat. I would also like to welcome our collaborating colleges, NSS Chaudhary Brahma Prakash Ayurved Charak Sansthan, Delhi, NSS Acharya Narendra Dev College, DU, NSS Jawaharlal Nehru University, NSS Deen Dayal Upadhyay College, DU, NSS Janki Devi Memorial College, DU, NSS Shri Govindram Seksarai Institute of Technology Science, Indore, NSS Aryabhatta, DU, NSS NKTT, Mumbai, NSS MGC, Kerala, NSS DJNSS, Mumbai, NSS Bokaro Steel City College, Jharkhand, NSS Institute of Home Economics, DU, NSS Aditya Mahavidyalaya College, DU, NSS Government Arts College, Andhra Pradesh, NSS Delhi School of Professional Studies and Research, Delhi, NSS Motilal Nehru College, DU, NSS SS Jain Subodh PG College, Jaipur, and finally the societies of NSUT, Prayas, Axiom, and Rotaract. I would also like to welcome Dr. Pratima Singh, Program Officer at Institute of Home Economics, Hotchkiss,
Dr. Vinod Kumar, NSS Program Officer at DSP SR, Baldev Gulati, NSS Program Officer, Dr. Jayanti P. Sahu, Program Coordinator at JDMC, Dr. Richa Singhal, Program Officer at SSGN Subodh PG College, Dr. Anshu Sharma, Program Officer at SSGN Subodh PG College, Sabin George, Program Officer of MGC Kerala. We hope that whatever you learn here, you will benefit from them always and forever. Now, I would like to welcome Dr. Praveen Saroha, Program Coordinator of NSS NSUT Cell, to come and address the gallery and to welcome our special guests. Over to you, sir. प्रणाम सभी को, नमस्कार। श्वेता, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir. आदरणीय माननीय कुलपति महोदय, एनएसयूटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेसर जेपी सैनी जी, प्राचार्य महोदय अदिति महाविद्यालय प्रोफेसर ममता शर्मा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है अदिति महाविद्यालय, आदरणीय श्री जोंग जिंग लोंग जो क्षेत्रीय निदेशक हैं एनएसएस दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर रीजन के, आदरणीय प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टी भूटिया सर जो हमारे अपने एनएसएस यूनिट के जो सिक्किम जो हमारा जो पार्टनर स्टेट है वहाँ से हमारे जो वो है कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जो सभी जो मौजूद जो इस ऑनलाइन सेशन में जो हमारे सभी जो गणमान्य व्यक्ति जो हैं जुड़े हुए हैं, संकाय डिफरेंट जो कर्मचारी हैं, पूरे संपूर्ण भारत से जो एनएसएस की जो इकाई हैं वो सभी जो जुड़ी हैं, हमारे एनएसयूटी के ईस्ट कैंपस के डायरेक्टर निदेशक महोदय प्रोफेसर प्रेरणा गौड़, और वेस्ट कैंपस से हमारे जो डायरेक्टर हैं निदेशक महोदय प्रोफेसर एपी मित्तल। आज मैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी का स्वागत करता हूँ। सभी जो एनएसएस यूनिट जो संपूर्ण भारत से जो इसमें जुड़ी हैं, और स्पेशली जो हमारे जो पार्टनर स्टेट है सिक्किम, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत जो जुड़े हैं, हमारे सिक्किम राज्य से जो हमारे जो डिफरेंट स्वयं सेवक जो एनएसएस के सब जुड़े हैं, उनका सभी का मैं स्वागत करता हूं। वहां से आए हुए सभी फैकल्टी, संकाय और डिफरेंट ऑफिसर्स का सभी का मैं स्वागत करता हूं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। आपको जैसे सभी को पता है कि इस बार जो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस पैंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में जो एक ऑनलाइन जो योगा का जो ये आयोजन किया है पिछले 7 दिनों से जो चल रहा था, उसमें हमारी आचार्य स्वाति झा जिन्होंने हमारे को ये सेशन दिए सभी, और इस में जो मेन जो स्पेसिफिकली जो मैं यहाँ पर कोट करना चाह रहा हूँ, हमारे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो सिक्किम राज्य ने और दिल्ली जो आपस में एक पार्टनर स्टेट हैं, इन्होंने आपस में जोड़ करके एक पूरा पैन इंडिया संपूर्ण भारत में ये योग की एक अलग जगाई, और जो भारत सरकार का जो एक प्रयास था उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करी। हमारे बीच जो सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, आज उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, और ज्यादा ना बोलते हुए अपने हमारे आज के जो विशिष्ट जो मेहमान हैं प्रोफेसर ममता शर्मा जो प्राचार्य हैं अदिति महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ और उनको मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने कुछ शब्दों से पूरे इस अगस्त गैदरिंग को पूरा एड्रेस करें। मैडम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सरोहा जी, इट्स इंडीड अ ग्रेट प्लेजर आप लोगों के साथ एसोसिएट होने में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले तो मैं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर जेपी सैनी जी, वाइस चांसलर, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, आपने हमारे स्टूडेंट्स को आपने जोड़ा। इसी के साथ श्री जैंगी लोंग और श्री तसीन भूटिया जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आज हमारे बीच में हैं। सभी से जैसा आप सभी लोग जानते हैं,
हम लोग 21 जून को ही क्यों योगा दिवस मनाते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या वो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगी। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, ये सभी जानते हैं। इक्वल डे, इक्वल नाइट, तो हमारा इक्विनॉक्स होता है 23 मार्च का। हमारा आज का समर सोलिस्टिस जिसे कहते हैं, तो आज के दिन जो सूर्य की रोशनी है वो पूर्णतः हमें मिलती है। और आज संयोग से आज एकादशी भी है, तो ये सभी चीजें हमें योग की तरफ प्रेरित करती हैं। आज मैं आह्वान करती हूँ आज के बच्चों का, जो आज के युग में जहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग हमारा ध्यान बट सकता है, फिर भी आज का जो भारतीय युवा है वो योगा से जुड़ा हुआ है। योगा is a word that became popular across the world in the last few years. हमारा ये 7वां इंटरनेशनल योगा दिवस है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अथक प्रयासों से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। Yoga is not only beneficial to the body, but also for the mind. It helps to improve blood and helps in building the mind clarity. For ages, बहुत सालों से, मतलब ages कहते हैं ना, yoga was known to be beneficial to our physical and mental health. It not only help us to stay calm, but also help us to lose weight. During this ongoing coronavirus pandemic, when we were all bound to live in a restricted life, even quarantine में भी लोगों ने योगा को practice किया है, and there is a constant fear, अभी भी वो fear गया नहीं है, there is a constant fear of infection. It is natural for anyone to develop anxiety. The continuous flow of negative news, the inadequacy of daily resources, everything is added to the growing anxiety and depression. And the solution is yoga. Being confined at home for such long periods of time can be mentally challenging for all of us. हम सभी इन हालातों से गुजरे हैं जिन्हें कोरोना वायरस हुआ भी है और जिन्हें नहीं भी हुआ। वो फियर, वो मेंटल स्टेट सभी की बनी रही। When our mind is flooded with uncertainty of future, we often experience sleepless nights, causing fatigue. Many of us are unable to relax our mind during this time, thereby increasing the stress of our minds. During this time, it is important to understand that mental health is very important. My particular address is to the students. To help with this growing level of anxiety and depression, we must lead a healthy lifestyle, stay connected with our loved ones, and practice yoga at home. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ममता शर्मा मैम, आपके विचारोत्तेजक स्वागत के लिए, भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बुलाना चाहूँगा टी भूटिया सर को, जो सरकारी स्कूल जो सिक्किम में आधिकारिक रूप से काम कर रहे हैं। वर्तमान में वो खेल और युवा मामलों के विभाग में वो कार्यरत हैं। तो टी भूटिया सर, आपका स्वागत है और आप आए और थोड़ा सा 2 शब्द कहें हमारे जो इस ऑगस्ट गैदरिंग के लिए। Over to you, T. Bhutia sir. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Namaskar sabhi ko. Respected Professor J.P. Sahini ji, Professor Mamta Sharma, Mr. Jangjing Long, and Professor Vijender Singh, and all those who are associated with this virtual event of yoga session, which was held for the last 7 days. Sikkim ki or se aap log ko naman, pranam aur namaskar. It is indeed a great pleasure to have been associated with our partner state Delhi, Dilwalo ka Sheher. And it brings us immense pleasure to know that Netaji Subhas University of Technology has been associated in providing the platform for all the volunteers of Sikkim as well in this beneficial era. As Professor Mamta Sharma rightly quoted that
in this time of pandemic, when we are locked in our homes, the best use of yoga can be made in today's life to come out of mental illness. हम सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से हम सभी अपने घरों में कैद जैसा हुआ है. It has been more than 3 months. Early to that, it has been 4 months. Second wave आ गया, first wave आ गया, और इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि NSS volunteers ने अपनी तरफ से सभी कार्यों को सामाजिक तौर से पूर्ण तरह से उन लोगों ने निभाया है. So आप लोग के साथ एसोसिएट होने से योगा की ओर से I think it is of great honor and of level of dignity to have been associated with you. Or I would like to thank the NSS unit of the concerned college for having appeared with us in this yoga session. And I think in this today's pandemic, the best solution to keep a person mentally fit and healthy would be yoga. And with these words, again from Sikkim, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. T. Bhutia, sir, for your kind words. Now I would like to invite Shri Jang-Ji Long, Regional Director, NSS of Delhi, Haryana, and Jammu and Kashmir region, to come and share a few words with us. Over to you, sir. Jang-Ji Long. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Okay, thank you, Dr. Pravin Saroha. Very good morning to you all present here this morning in the finale session of the 7-day long workshop run up to the International Day of Yoga, which started from 14th and culminating on 21st of June 2021. I would like to acknowledge the presence of our chief guest and Honorable Vice Chancellor, Netaji Subhash University of Technology, Professor J.B. Saini, and would like to comment and congratulate the wonderful initiative, the NSS unit of NSUT, under the guidance of Honorable Vice Chancellor and dynamic leadership of Dr. Pravin Saroha, the NSS Program Coordinator of the University, and Professor Vijender Singh, Dean Students Welfare, for organizing such innovative sessions, inculcating not only the ideals of yoga, but also the sense of Ek Bharat, Shresth Bharat, the foundation to a strong and unified India. I would also like to acknowledge, welcome and acknowledge Principal Professor Mamta Sharma of Aditya Mahavidyalaya, DU, Professor Jitin Bhutia, NSS State Coordinator of Sikkim, and all the NSS functionaries and dignitaries present from different colleges of Delhi University, NSS units from Jawaharlal Nehru University, and from Indore, Kerala, Jharkhand, Andhra Pradesh, Jaipur. So I'm very excited to see all of you being a part of this wonderful session. Now, when Prime Minister Narendra Modi suggested to the United Nations that we should celebrate an International Day of Yoga, a record number of UN member states accepted the proposition of our Prime Minister, and passed the resolution without even going for a vote. This shows the universal applicability of yoga among all the global citizens. Last year, 192 nations across the world celebrated the International Day of Yoga on 21st June 2020. This year is the 7th year of International Day of Yoga, and the theme of this year is Yoga for Well-being. The implication on the importance of yoga, especially during this pandemic of COVID-19, has once again asserted the applicability and importance of the practice of yoga for our well-being. I should say that yoga is for everybody. One cannot say that the telephone is not for India because it was invented in America. Similarly, the methods and teachings of yoga, although it was developed in India, it is applicable to all and is useful to all the mankind. In fact, the Ministry of Youth, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports have included yoga as an integral part of Fit India movement as well. We are important to see and encourage to have many young NSS volunteers, NSS program coordinators,
NSS program officers and many NSS functionaries in field duty during COVID-19, risking their own safety and safety of the family as well. And they are doing it solely for the purpose of eradicating coronavirus from our country. I would once again like to congratulate you all for organizing such a wonderful session, and thank you for being a part of this event. I would also like to acknowledge the presence of our UCA expert, Ms. Acharya Swaticha. Thank you for all the technical and professional guidances, and I hope and pray that we'll have a fruitful session of UCA. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words and the information you have shared with all of us. Thank you for sparing your time to come and join with us. So thanks to you. And now I finally would like to invite Honorable Vice Chancellor, Professor J.P. Saini, to the stage and say a few words to all of us. Thank you, Dr. Seroha. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Yeah, very good morning and happy Yoga Day to all of you present here today. A very warm welcome to our guest of honor, Sri Jangi Long, Regional Director NSS, Professor Mamta Sharma, Principal Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, Sri T. Bhutia, NSS Coordinator, Sikkim, Ms. Pujashwini Dubey, Program Coordinator, SRM University, Sikkim, Acharya Ms. Swati Jha, representative of various institutions across the India, Professor Vijendra Singh, Dean Student Welfare, NSUT, Dr. Praveen Saroha, Director Physical Education and NSS Coordinator, NSUT. My dear young minds and participants from all over the India, on behalf of NSUT fraternity, I welcome you all. I wish also mark here a special welcome and extend my gratitude towards our partner institutions in Ek Bharat Shresth Bharat, NSS, SRM University Sikkim and Government Senior Secondary School, Kizing, South Sikkim. I wish to start this ceremony with a famous quote. Here, yoga is not about self-improvement, it's about self-acceptance. So with this quote, which is very apt today and for International Day of Yoga, the fact that we have reached with this up to an international level is of great significance for us. On this auspicious occasion of 7th International Yoga Day, we all have assembled here virtually today to celebrate the depth of knowledge that has gathered, garnered, and placed. Today, we should feel proud to be the part of global festival recognizing the crucial role of yoga in promoting the holistic health of every individual. The overwhelming response in the week-long celebrations of International Yoga Day through workshop and competitions is mesmerizing, and I would congratulate NSS cell of NSUT and all other collaborating institutes for making it success. A science and an art that is validated, accepted, and recommended by ancient texts, including our Bhagavad Gita, to modern day science. We all know yoga helps us building a strong physical, mental, and spiritual health system and act as a best element to take care of our mind, body, and soul. Today, the world suffers from the health crisis. We all know the pandemic has confined the country's healthcare system, economics, and consequently fueling the rise of other health ailments. This situation has highlighted the significance of good health. A healthy people makes a strong country. And the ultimate art of yoga has a decisive role in ensuring good physical and mental health. Today, I am excited here to address all such potential young leaders who I believe will set a sail for the stronger and healthier India, who will propagate the treasures of yoga as an eternal idea for health living across the world. Consequently, I would reiterate the essence of yoga in a healthy lifestyle and emphasize that you should not limit yoga for one day. Instead, to make it a part of your daily routine. So I will take this opportunity to invite you all for the place with me. So kindly, please repeat with your name.
I, I, Professor J.P. Saini, Dr. Praveen Sarwa, pleased to make yoga pleased to make yoga an integral part of my daily life. an integral part of my daily life. I will also contribute I will also contribute in spreading awareness in spreading awareness about its benefit and encourage about its benefits and great my friends and family. by friends and family. Thank you. Thank you, So I sir. wish you all a very healthy and happy way ahead with the change that you want to see in the world. And let's make a difference. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for your kind words and sparing your time to join this session. Now, I would like to call a student coordinator, Sweta, to kindly further proceed the program ahead. Thank you, Sweta, over to everyone. you. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Thank you, everyone, for your blessings. Now, without any further delay, I would invite Acharya Swati Jha to take over for the yoga session. 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे उपस्थित माननीय कुलपति महोदय, माननीय डॉक्टर प्रवीण सरोहा सर, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उपस्थित गणमान्य सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त सभा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस मनाने के लिए सर्वसम्मति से एक आह्वान किया था, जिसे सबने मिलकर सहर्ष स्वीकार किया और इसके बाद हम लोग 2015 से उन्होंने 21 जून को मनाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हम लोग और 21 जून 2015 को सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसके बाद हम लोग हर एक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे हम आयुष मंत्रालय द्वारा जारी योग विषय पे योग का प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझ ले जो योग क्या है। तो योग बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, जो पतंजलि योग सूत्र में अनुशासन योग है, अथ योगानुशासनम। फिर दूसरा सूत्र है उनका योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना योग है। वहीं पे श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। फिर कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। ये बड़े बड़े लाइन हो जाते हैं हमारे लिए। मैंने प्रोटोकॉल में माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़ा, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक सरल भाषा में एक लाइन लिखा था, मैं से हम तक की अनोखी यात्रा को योग कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन और मुझे लगता है शरीर, मन और बुद्धि को संतुलित करने की जो कला है उसी को योग कहते हैं। तो इस योग के बारे में बहुत कुछ बताना यहाँ पे संभव नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। योग का एक अंग होता है आसन, कुछ सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करेंगे जो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है उसको। उसके बाद इसी में कुछ प्राणायाम का भी थोड़ा सा ये होगा, योग निद्रा होगा, ध्यान होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे टीम को, एनएसएस और डॉक्टर प्रवीण सरोहा सर, कुलपति महोदय, सबको जो मुझे इस मौके पे उन्होंने चुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब हम शुरू करेंगे योगा प्रोटोकॉल। योग प्रोटोकॉल के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने मैट पे। अपने मैट पे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 2 इंच यानी 4 उंगलियों का कम से कम गैप करें। पैरेलल गैप हो, ऐसा नहीं जो पंजे बाहर की तरफ हो, पंजे एकदम समानांतर यानी पैरेलल हो। दोनों हथेली आपके थाई के बगल में, शरीर पूरी तरह से सीधी सम स्थिति में आ जाए। सम स्थिति में आकर के हम थोड़ा सा चालन की क्रिया करेंगे। इससे पहले सम स्थिति में आकर के दोनों हाथों को जोड़ लें और यहाँ पे हम करेंगे मंत्र का उच्चारण। तो आ जाए, आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी,
पीठ सीधी। ये हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठ करके भी कर सकते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में जैसे कंफर्टेबल हो आप लोग। अगर बैठ करके कंफर्टेबल है तो बैठ करके भी कर सकते हैं। जिन्हें नीचे बैठने में दिक्कत हो वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर लीजिए। लेकिन अगर मैट पे करते हैं तो सबसे अच्छा। तो मैट पर के बैठ करके करने के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बैठ के किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाइए, जो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं वो, नहीं तो खड़े होकर के भी किया जा सकता है। तो या तो हम सुखासन में बैठ जाएं पालथी लगा करके, या पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर वज्रासन में बैठ जाए। जो जिस आसन में आप कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में बैठ जाइए, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं देख लीजिए। उसके बाद पैरों को रिलैक्स करके स्पाइन को स्ट्रेट कर ले, आंखें बंद करें, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, एकदम शांत स्थिर। कमर, गर्दन, पीठ एक सीध में, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर। अपना ध्यान, अपनी चेतना अपने शरीर पे आ जाए। शरीर पे ध्यान दीजिए, क्या स्थिति है आपके शारीरिक अवस्था की। शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था को देखें, अपने वैचारिक अवस्था को देखें। कुछ पल के लिए शांत हो जाए। योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले प्रार्थना के साथ, प्रार्थना में एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। उससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। धीमा लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे गहरा। ओम। संगच्छध्वं संबद्धध्वं संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनासि जानता संभो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को जोड़ लीजिए, नमस्कार की मुद्रा बनाएं। एक बार अपने माता पिता, कोई गुरु हो तो गुरु, और इष्ट देव जिस देवता को आप मानते हैं उन्हें नमन करें। दोनों हथेली को कर्व करके अपने पलकों पे ले जाएं। हथेलियों की ऊष्मा को अपने पलकों पे महसूस करें।
प्रार्थना के भाव को आत्मसात करते हुए धीमे से अपनी हथेली हटाएं, समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। अब हम करेंगे थोड़ा अभ्यास, जिसमें सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं खड़े होकर के। तो प्रार्थना करने के बाद आ जाएंगे, खड़े हो जाएं। सब लोग अपने मैट पे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी करें, यानी 4 उंगलियों की दूरी। कमर, गर्दन, पीठ एकदम सीधी, स्थिर हो जाए। कुछ पल के लिए अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने इस शरीर, अपने इस मैट के साथ जोड़िए। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे सबसे पहले ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन करने के लिए अपने दोनों हथेली को अपने कमर पे लगा दें। कमर पे लगाने के लिए चारों उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, इस तरह से लगा के आराम से अपने ग्रीवा मतलब गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, यानी चालन क्रिया करेंगे, जिसमें सांस भरते हुए सिर को ऊपर ले जाना है। तो सिर को ऊपर ले जाने से पहले अपने चिन को पहले चेस्ट से लगाएंगे। ध्यान से देखें इस चीज को। फिर 3 बार इसको दोहराना है आप लोगों को। मैं एक बार दिखाऊंगी, फिर 2 बार दोहराऊंगी। तो चिन को चेस्ट से लगाएं, सांस बाहर है, सांस भीतर लेते हुए अपने सिर को ऊपर ले जाएं, जहां तक पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। सांस खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। फिर मध्यम अवस्था में आ जाएंगे। शरीर जहां पे जिस अवस्था में आपका सिर था उस अवस्था में ले आए। 2 से 3 बार गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस छोड़ेंगे। अब अपने ग्रीवा को बाएं और दाएं झुकाएंगे। इसके लिए दाहिनी तरफ अपने कान को कंधे से लगाने का प्रयास करना है। ध्यान दें, कंधे ना उठे, कंधा आपका ऊपर ना जाए जब आप सिर को ले जाएं या कान को ले जाएंगे उस तरफ तक। तो सांस भरिए, सांस खाली करते हुए ले जाएंगे। सिर को दाहिनी भाग यानी अपने राइट तरफ ले गए। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस खाली करते हुए बाईं ओर। फिर सांस भरते हुए सेंटर में। ध्यान रहे, जिनको बहुत ज्यादा गर्दन में पेन हो वो नहीं करना है उन्हें। जिनको हल्का फुल्का पेन है वो कर सकते हैं। देख लीजिए जहां पेन नहीं हो रहा वहां तक जाएं, बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। आ जाएंगे फिर सेंटर में। सेंटर में जब आ रहे हैं सांस भर रहे हैं, जब दूसरी ओर जा रहे हैं सांस को छोड़ रहे हैं बाहर। फिर से सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस बाहर करते हुए अपनी दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस खाली करते हुए दूसरी ओर। आ जाएंगे सेंटर में। 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। 3 बार जब पूरी हो जाए उसके बाद फिर आ जाएंगे सेंटर में समय स्थिति में। अब अपने गर्दन को मोड़ेंगे दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ। दाहिनी तरफ ले जाने के लिए फिर से सांस छोड़ते हुए जाएंगे दाईं तरफ, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। धीमे से अभ्यास को दोहराना है। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए दाहिनी तरफ, भरते हुए बीच में, फिर सांस खाली करते हुए बाईं तरफ। 3 बार करने के बाद आ जाएंगे वापस। जब ये 3 प्रक्रिया कर लेंगे उसके बाद हम अपने सिर को गोलाकार घुमाएंगे। जिन्हें चक्कर आता हो, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो, वो नहीं करें। नहीं तो आराम से अपने सिर को
नीचे की तरफ झुकाएं, अपने ठुड्डी को छाती से लगाएं यानी चिन को चेस्ट से लगाएं। अब दाहिनी तरफ अपने कान को कंधे से लगाते हुए सिर का निचला हिस्सा गर्दन से लगे, बाएं कंधे से बायां कान लगे, आगे छाती से चिन लगे, घुमा के लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर सांस भरते हुए ठीक उल्टा घुमाएंगे अपने सिर को, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस खाली करते हुए आ जाएंगे आगे, यानी हाफ सर्कल बनेगा इनहेल करते हुए और हाफ सर्कल बनेगा एक्सहेल करते हुए। फिर से दोहराएंगे इसी क्रम को 3 बार धीमे धीमे घुमाएं। आंखें खुली हुई हो, आंखें बंद नहीं करना है। 3 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद सेंटर में आकर के स्थिर हो जाएं। दोनों हथेली को नीचे अपने थाई के बगल में लगा लें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। तो अभी हमने किया ग्रीवा चालन, थोड़ा सा अपने गर्दन का खिंचाव दिया। अब हम करेंगे स्कंध चालन। स्कंध मतलब होता है कंधा। तो अपने कंधे के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया करेंगे जिसमें इसी तरह से फिर समस्थिति में खड़े हो जाएं, छाती को उभारें, थोड़ा सा चिन को ऊपर करेंगे और सांस भरते हुए दोनों हथेली को ऊपर की तरफ सिर के ऊपर ले जाएंगे, जिसमें हथेली एक दूसरे के ऑपोजिट विपरीत दिशा में होगी। और जब हम ऊपर ले जाएंगे तो दोनों हाथ मिलेंगे नहीं और नीचे लाएंगे तो आपके जंघा से स्पर्श नहीं होगा। 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। पहली बार देखें, सांस भरते हुए अपने हाथों को ले जाना है ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। 3 बार अपने भुजाओं को क्रिया कराने के बाद आ जाए फिर से समस्थिति में, फिर खड़े हो जाए समस्थिति में। इसके बाद अब हम दोनों हाथों को ले लेंगे ऊपर, दोनों तरफ, यानी दाएं उंगलियों को दाएं कंधे पे और बाएं उंगलियों को बाएं कंधे पे साइड से रख लें, कोहनी को मोड़ते हुए। अब सांस भर लें और दोनों कोहनी को आगे छाती के सामने में मिलाएं। सांस भरते हुए कान से अपने बाह को गुजारें और ये करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आए, चक्राकार घुमाना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर से सांस को भर ले, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे करेंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है अभ्यास, लेकिन जिन्हें बाह में बहुत ज्यादा दर्द हो वो अपनी क्षमता के अनुसार करें। जैसे 3 बार इसको एक दिशा में किया है, उसी तरह से विपरीत दिशा में, यानी रिवर्स रिवर्स। फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे दोनों कोहनी यानी एल्बो को, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1 बार और 3 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद दोनों हाथों को नीचे लेकर के आ जाएंगे आराम से, फिर स्थिर हो जाए। इसके बाद अब हमें करना है कटी संचालन, यानी कटी मतलब कमर। अब अपने कमर को हम मूवमेंट देंगे जिसमें दोनों पैरों में शोल्डर के जितना भी या 2 फीट का गैप आप कर सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों को सामने ले लें, यानी अपने कंधे के बराबर में दोनों हथेली एक दूसरे की तरफ उठा करके यहाँ पे रोकेंगे और इसी अवस्था में अपने अपर बॉडी को यानी कमर से ऊपर वाले भाग को दाईं तरफ फिर बाईं तरफ या बाईं तरफ फिर दाईं तरफ ले जा सकते हैं। तो सांस भर ले और सांस को खाली करते हुए जाएंगे अपनी दाईं तरफ,
दाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। बाएं हथेली को कंधे से भी लगा सकते हैं, कोहनी को मोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए आ जाएंगे सेंटर में, सांस खाली करते हुए दूसरी ओर। फिर सांस भरते हुए सेंटर में आ जाए, सांस खाली करते हुए दूसरी ओर, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस खाली करते हुए फिर बाईं तरफ। ऐसे ही एक एक बार और सांस छोड़ते हुए जाए, सांस भरते हुए सेंटर में आ जाइए, फिर सांस खाली करते हुए दूसरी ओर। उसके बाद सेंटर में आकर के दोनों हाथों को आराम से नीचे करेंगे। ये है कटी चालन। फिर आ जाएंगे हम समस्थिति में। जब कभी भी एक अभ्यास करें फिर दूसरे अभ्यास के बीच में थोड़ा सा गैप दें, धीरे धीरे सांस लें, सांस छोड़ें। प्रसन्नता का भाव होना चाहिए आपके मुख पे। तो ये हो गया कटी चालन। अब हम घुटने का संचालन करेंगे। घुटने के संचालन के लिए जिनको घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो वो नहीं करें, नहीं तो और या आर्थराइटिस बहुत ही भयंकर हो उनको नहीं करना है। नहीं तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करना है। दोनों हाथों को सामने ले लें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरह से चेयर पे बैठने का प्रयास करना है। आपको बैठना नहीं है, इतना बैठना है, कोशिश करनी है जो आपका थाई जो है, आपका जांग जो है वो मैट का पैरेलल हो जाए। तो यानी सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ये 4 तरह के अभ्यास हैं जो हमने किया। सबसे पहले ग्रीवा चालन किया, स्कंध संचालन किया, कटी संचालन किया, फिर घुटने का संचालन किया। ये 4 प्रक्रिया आपको करने के बाद अब हमें जाना है आसन की तरफ। आसन स्थिर सुख। तो जब हम शुरू करते हैं तो उसमें सुख तो नहीं होता, उस समय थोड़ा सा बॉडी स्टिफ होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। थोड़े दिन उस तकलीफ को बर्दाश्त करना है, लेकिन ध्यान रहे जो अभ्यास करने के समय जो तकलीफ हो रहा है अगर वो तकलीफ बाद में भी बना रहता है तो उस अभ्यास को छोड़ देंगे। नहीं, सिर्फ अभ्यास करने के समय में अगर तकलीफ हो रहा है बाद में फिर सामान्य हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं अभ्यास को। जिन्हें किसी तरह की गंभीर बीमारी हो या 3 महीने के अंदर जिनकी सर्जरी हुई हो, कोई एब्डोमिनल या कोई भी सर्जरी हुई हो, तो वो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। उसके बाद योग्य शिक्षक के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करें। बार बार इसको कहा गया है। थोड़ा सा इसमें पॉज लेंगे। जो कि हम योग के बारे में थोड़ा समझ लिया है, योग कैसे करना चाहिए तो उसके 2-4 नियम हैं जो आपके प्रोटोकॉल में भी दिया हुआ है और हमें पढ़ाई भी होती है। तो उसमें होता क्या है, जो आपको मैट पे या कंबल पे, दरी पे करना है। कहने का मतलब है जो धरती पे सीधा नहीं, नीचे में जमीन पे सीधा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एनर्जी अर्थ हो जाती है। हमें जो योग से ऊर्जा प्राप्त होता है वो ऊर्जा जमीन में अर्थ ना हो जाए, इसलिए हम किसी दरी, कंबल, मैट, कुशासन का भी पहले उपयोग होता था। तो वो सब तो प्राचीन काल में होता था। आज के युग में मैट भी ठीक है क्योंकि ग्रिप भी सही बनता है, रबर का होता है इसलिए, और स्लिप नहीं करता है। तो और बैड कंडक्टर भी है तो एनर्जी भी अर्थ नहीं होती है। तो या तो उस पे करें। खाली पेट योग अभ्यास करना बहुत ही अच्छा है। जिसे कमजोरी लग रहा हो या बहुत ज्यादा लग रहा हो, जो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं भूख, तो उनके लिए सजेशन दिया जाता है गुनगुने पानी में शहद मिला करके पीने के लिए। उसके बाद अभ्यास करें स्वच्छ होकर के, पेट खाली करने के मतलब मल मूत्र का त्याग करने के बाद ही योग का अभ्यास होना चाहिए। खाली पेट, मल मूत्र, उसके बाद सही हो। कपड़े आपके सूती होने चाहिए, कॉटन के कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, हल्के कपड़े होने चाहिए जिसमें आप हर एक आसन में आराम से जा सकते हैं। आसन करने के 20 से 30 मिनट के बाद ही नहाना चाहिए और कुछ खाना चाहिए। यहाँ तक कि जमीन पे सीधा पैर भी नहीं रखना चाहिए। तो इन चीजों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें डेली अभ्यास करना चाहिए क्योंकि तुरंत इसमें फल नहीं मिलता। कुछ दिन आपको लगातार करना पड़ेगा अभ्यास। जब लगातार करते हैं हम अभ्यास, उसके बाद इसका बहुत ही अच्छा परिणाम हासिल होता है। तो कुछ संचालन क्रिया के बाद अब हम करेंगे खड़े होकर के आसन।
खड़े होकर के आसन के लिए सबसे अच्छी बात होती है, खड़े होकर के जब हम आसन करते हैं तो इसी अवस्था में हम खड़े होते हैं, क्योंकि ये बेसिक आसन है। जब कभी भी खड़े होकर के कोई आसन करते हैं तो समस्थिति में आते हैं। तो समस्थिति इसी को कहते हैं। समस्थिति में आ जाए, दोनों पैरों की उंगलियों में, दोनों पैरों के पंजों में 4 उंगलियों का गैप या 2 इंच का गैप रखें, यानी पेल्विक पे आपका ज्यादा प्रेशर ना आए। दोनों हथेली आपके थाई के बगल में, आराम से यहाँ पे खड़े होकर के पहला आसन करना है ताड़ आसन। ताड़ का मतलब होता है ताड़ या खजूर का पेड़, उसी के नाम पे चूंकि वो सीधा खड़ा रहता है इसलिए इसका नाम ताड़ासन रखा गया है। तो ताड़ासन जिनके वेरिकोज वेन्स में वाली प्रॉब्लम हो, जिनको एंकल में कोई तकलीफ हो, वो हील नहीं उठाएंगे, लेकिन बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्नायु के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक निश्चित उम्र तक लंबाई भी बढ़ाती है, इसलिए ताड़ासन बहुत ही अच्छा आसन है। तो आ जाए, दोनों हाथों को ले आएंगे अपने शोल्डर लेवल में, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के हथेली को पलटा दे। इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अपर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। सामने किसी एक पॉइंट पे अपनी आंख को टिकाएं, हील को उठा करके होल्ड करेंगे जितनी आपकी क्षमता है। कोशिश करें कम से कम 10 सेकंड, मैक्सिमम अभी 15 सेकंड, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सांस भरते हुए अपने पंजे पे बैलेंस बनाए, अपने हील को उठा करके होल्ड करें, सामने किसी एक पॉइंट पे देखें और होल्ड करना है आपको मन ही मन 10 सेकंड या 15 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हील को धीमे से नीचे करेंगे, दोनों हाथों को नीचे करें, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। ताड़ासन करने के बाद अब हम करेंगे, यहाँ पे दूसरा आसन जो दिया हुआ है वो है वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष मतलब पेड़, क्योंकि इसके अंतिम अवस्था में शरीर वृक्ष के तरह दिखता है इसलिए इसका नाम रखा गया है वृक्षासन। तो वृक्षासन बैलेंसिंग आसन है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत करता है और इससे आपका जंघा और घुटना सब मजबूत होता है। लेकिन जिनको आर्थराइटिस हो, जिनको घुटने में पेन हो, वो नहीं करें। इसके अभ्यास के लिए अपने बाएं पैर की उंगलियों को चौड़ा करें जिससे ग्रिप बने, आपका पैर पंजा पूरी तरह से जमीन पे अड़ जाए, और अपने राइट लेग को घुटने से मोड़ के थाई पे लगाएं पंजे को, यानी तलवा आपका लेफ्ट लेग के थाई पे जाएगा, मूलाधार के पास हील जाना चाहिए, और आराम से कोशिश करेंगे इसमें बैलेंस करने की। जब आप बैलेंस तभी कर सकते हैं जब अपने आंख को एक जगह टिका देंगे। तो आंख को टिकाएं और दोनों हाथों को धीमे से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीमे से दोनों हाथों को नीचे लेकर के आए, फिर अपने पैर को आराम से लेकर के आ जाएंगे वापस। यह है वृक्षासन की अंतिम अवस्था। आपसे जितना हो रहा है उतना ही करें, लेकिन कोशिश करें फिर दूसरी तरफ से भी हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। अब अपने राइट लेग के फुट को आराम से चौड़ा करें, उंगलियों से को चौड़ा करके ग्रिप बनाएंगे जिससे बैलेंस बने। आंख को एक जगह टिकाइए, टिका करके हील को ऊपर करना है, अपने मूलाधार के पास समीप ले जाने का प्रयास करना है। घुटने पे ना अटकाएं, घुटने में दर्द होगा। सामने किसी एक पॉइंट पे देखिए, उसके बाद धीमे से दोनों हाथों को ऊपर करके आराम से 10 से 15 सेकंड बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीमे से दोनों हथेली को नीचे ले आए, पैर को ऊपर ले आएंगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया, उनकी सांसें रुक जाएंगी अभी अभ्यास के क्रम में, लेकिन प्रयास करना है जो धीरे धीरे सांस को सामान्य करना है। हर एक आसन में सांस सामान्य हो जाएगा।
ये हो गया वृक्षासन। वृक्षासन के बाद अब हमें अगला आसन करना है पाद हस्तासन। पाद का मतलब पैर होता है, हस्त का मतलब हाथ। अपने हाथों को पैर के पास ले जाना है, यानी सामने से झुकने वाली प्रक्रिया है ये। जिनको बैक में बहुत ज्यादा पेन है वो नहीं करेंगे, नहीं तो और सारे लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है और आपके स्पाइन को और आपके कमर को लचीला बनाता है। तो आ जाए, दोनों हाथों को ऊपर करें। पाद हस्तासन में दोनों हाथ ऊपर जाएगा, दोनों हथेली सामने की तरफ, ऊपर की तरफ अपर बॉडी को खींच लीजिए। उसके बाद कमर से झुकने का प्रयास करें। शरीर जितना अनुमति दे उतना ही जाना है। दोनों हथेली से अपने पैर को स्पर्श करें, या अगर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हथेली अपने दोनों पंजों के बगल में रख के अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। लेकिन शरीर जितना दे हो सकता है, नहीं आपसे ज्यादा झुका जाए तो कोई जबरदस्ती नहीं करनी। सांस भरी, सांस खाली कर जाए, आराम से आए। दोनों हथेली आपके पैरों के बगल में, कोशिश है अपने सिर को लगाने का जितना आपसे होता है। अगर नहीं लगता था तो भी बहुत अच्छा, लगता है तो भी बहुत अच्छा। होल्ड करेंगे, गहरा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, सांस बंद नहीं करना है और यहाँ पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर आएंगे जैसे गए थे। दोनों हाथों को दूर करें, कमर से उठने का प्रयास करें, आराम से आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। ये है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के बाद इसका काउंटर पोस्चर करेंगे हस्तोत्तानासन। हस्त मतलब हाथ, उत्तान मतलब उठा हुआ। हाथ को ऊपर की तरफ खींच करके इसको हस्तोत्तानासन भी कहा जाता है। और जब हम पीछे बैक बेंड करते हैं तो दो इसका काउंटर पोस्चर होगा, एक हस्तोत्तानासन और दूसरा होगा अर्ध चक्रासन। तो यहाँ पे हम अर्ध चक्रासन कर लेते हैं, जो थोड़ा सा बैक बेंड अच्छे से हो जाए। तो दोनों उंगली को ले ले बैक कमर पे, चारों उंगलियां दो पीछे क्लोज करें। क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंड किया है तो ठीक इसका उल्टा बैक बेंडिंग करेंगे। तो सांस भरिए और सांस भरते हुए पीछे की तरफ बैक को बेंड करके होल्ड करेंगे। यह है अर्ध चक्रासन, यानी आधा अर्ध चक्र मतलब चक्का, आधे चक्के की भांति शरीर की आकृति हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीमे से आ जाएंगे सेंटर में और दोनों हाथों को नीचे करें। यह है अर्ध चक्रासन। कमर को उल्टी दिशा में घुमाया, चूंकि हमने फॉरवर्ड बेंड किया था तो उसका काउंटर पोस्चर करना जरूरी होता है, तो बैक बेंडिंग। कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, आपके स्पाइन को और कमर को लचीला बनाता है और पेट पे जमे एक्स्ट्रा फैट को दूर करता है। तो ये आसन इसके बाद जरूर करेंगे। जब हम कभी भी फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो बैक बेंड करना साथ साथ जरूरी होता है, इसलिए आसन करेंगे। अब हमारा अभ्यास होगा त्रिकोण आसन का। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में 2.5 से 3 फीट की दूरी करेंगे पैर में। वैसे जो आप कितने पैर खोलना, पैर खोल करके आप कंफर्टेबल है उतना पैर खोलें। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें शरीर की स्थिति त्रिभुज के समान होता है, त्रिकोण के समान 2-3 त्रिकोण बनता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन रखा गया है। ट्रायंगल पोज भी कहते हैं इसको। तो त्रिकोण आसन के लिए अपने मैट पे टर्न लेंगे। अपने मैट पे टर्न लीजिए, यानी अगर आपकी मैट अगर लंबे है तो आपको टर्न ले लेना है, अगर नहीं चौड़ाई में लगाए हुए हैं तो फिर टर्न नहीं लेना है। दोनों पैरों में
गैप कीजिए जितने में आप कंफर्टेबल हैं, 2.5 से 3 फीट का अंतर हो। दोनों पंजे एक दूसरे के पैरेलल, ऐसा नहीं जो दोनों पंजे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं होना है, दोनों पंजे पैरेलल होंगे। अब अपने हाथ को शोल्डर लेवल पे ले लेंगे, अपने दोनों भुजाओं को शोल्डर लेवल पे लेकर के अपने राइट फुट को टर्न कर दीजिए। राइट फुट को टर्न किया, अब राइट में ही शरीर को बेंड करना है। राइट में जब शरीर को बेंड करते हैं तो आपका हाथ जो है हथेली वो नीचे जाएगा राइट में, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना जाना है। हो सकता है अभी कम जा पाए तो घुटने के पास रखें हथेली, नहीं अगर आराम से आप जा सकते हैं तो अपने हाथ को पैर के पीछे ले जाना है और यहाँ होल्ड करना है। जिनके नेक में पेन है वो गर्दन को ना घुमाए, जो सहज है इस अवस्था में वो आराम से ऊपर की तरफ ऊपर वाले हाथ के मिडिल फिंगर को देखे, घुटना सीधा रहे। त्रिकोण आसन में कुछ पल के लिए बने रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाएंगे धीमे से वापस यहीं पे, बैलेंस बनाते हुए आ जाए। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। अब अपने राइट फुट को यथास्थान ले आएंगे, दोनों हाथ नीचे। इसी तरह से दूसरी ओर से, यानी फिर से दोनों हाथों को ले ले शोल्डर लेवल पे। अब अपने लेफ्ट फुट को टर्न किया। फुट को जब टर्न करते हैं तो एक दूसरा पैर जो उसके आर्च की ठीक 90 डिग्री में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने पैर। अब दोनों हथेली शोल्डर लेवल पे। जिनको कमर का बहुत असहनीय पीड़ा हो वो नहीं करेंगे त्रिकोणासन, नहीं तो आराम से त्रिकोणासन कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए अब लेफ्ट तरफ जाएंगे। लेफ्ट फुट को टर्न किया, लेफ्ट में शरीर को बेंड किया, लेफ्ट हथेली या उंगलियों को ले जा करके अपने लेफ्ट फुट के पीछे रख रहे हैं और राइट हैंड को देखने का प्रयास करेंगे। ये हथेली भी जमीन से लगा देंगे, जैसे कंफर्टेबल हुआ उस अवस्था में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाएंगे धीमे से वापस, पैर को यथास्थान ले आएंगे। दोनों पैरों को जोड़ करके ये हमारा खड़े होकर के आसनों का सीरीज था जिसमें हमने 4 आसन किए। पहला आसन हमने किया है ताड़ासन। ताड़ासन के बाद हमने किया है वृक्षासन। वृक्षासन के बाद पाद हस्तासन और अर्ध चक्रासन। उसमें हस्तोत्तान भी कर सकते हैं, 2 आसन किया जा सकता है उस समय। वैसे बैठ कर लेट करके जब करेंगे भुजंगासन कर सकते हैं, बैठ करके उष्ट्रासन कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम खड़े होकर के या तो हस्तोत्तानासन करेंगे या फिर अर्ध चक्रासन करेंगे। जिनको ज्यादा बैक में पेन है वो हस्तोत्तान कर लेंगे और नहीं तो अर्ध चक्रासन करके। उसके बाद ये तीसरा आसन करने के बाद अब हमने किया है त्रिकोणासन दोनों तरफ से। अब हम खड़े होकर के 4 आसन 5 आसन हमने कर लिया है, 4 भी कह सकते हैं 5 भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद अब हम आएंगे सिटिंग पोज के आसन पे, यानी बैठ करके किए जाने वाले आसन की तरफ। बैठ करके आसन अब करेंगे जिसमें दोनों पैरों को सीधा करके अब बैठना है। दोनों पैरों को सामने सीधा करके बैठना है। दोनों पैर सीधा है, दोनों हथेली कमर के बगल में। ये भी जैसे खड़े होकर के समस्थिति में थे वैसे बैठ करके दंडासन है। ये दंडासन, दंड का मतलब डंडा, यानी हमारा स्पाइन डंडे के समान एकदम स्ट्रेट हो और दोनों हथेली हमारे कमर के बगल में, पंजे आराम से, पैर रिलैक्स। और इस स्थिति को कहते हैं दंडासन। दंडासन में 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। गहरा गहरा सांस लें, सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से आ जाएंगे। यहां अब हम अगला आसन करेंगे। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ें। दंडासन से ही किसी आसन में जाने का प्रयास करें।
इसमें दोनों पैरों के तलवे को मिलाएंगे। आर्थराइटिस वाले नहीं करेंगे, नहीं तो दोनों पैरों के तलवे को मिलाइए। जिनका घुटना आराम से जमीन पे नहीं जा रहा है वो कुशन या तकिए का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों पैरों के तलवे को मिला के दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। अपने हील को ग्रोइन के पास ले जाने का प्रयास करें, यानी मूलाधार के पास, दोनों घुटने जमीन से। आपका कमर पूरी तरह से सीधा हो जाए, पूरी तरह से सीधा हो जाए कमर। भद्रासन, भद्र मतलब स्थिर, शांत। इस आसन से धैर्य आता है। सबके लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन महिलाओं के लिए इसे वरदान कहा गया है, क्योंकि पेल्विक जोन पे ये पूरा काम करता है और बहुत ही फायदेमंद है ये। इसलिए इसका अभ्यास हमेशा होना चाहिए, डेली होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 सेकंड के लिए बने। आंखें बंद कर सकते हैं या खोल के भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से सीधा करें दोनों पैरों को। फिर से दंडासन की स्थिति में आइए। दंडासन में आकर के 1 से 2 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। भद्रासन, भद्र मतलब स्थिर, शांत। तो भद्रासन करके अब हम करेंगे वज्रासन। ये है दंडासन की स्थिति। नेक्स्ट आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन के लिए दो तरह से जा सकते हैं, या तो हाथ को एक तरफ रख के दोनों पैरों को मोड़ के पीछे ले जाएं, या फिर एक पैर को पीछे की तरफ मोड़े। तो जैसे एक पैर को पीछे मोड़ने के लिए तो अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, फिर राइट को फोल्ड किया और दोनों पैरों के अंगूठे को पीछे मिला दिया। दोनों घुटने मिले हुए, हील में गैप है और हील पे हम बैठ गए। हील पे अपने सिटिंग बोन को रख दीजिए, यानी नितंब को अपने एड़ी पे रख देना है और बैठ जाना है। इस अवस्था को वज्रासन कहते हैं। दोनों हथेली आपके थाई पे, स्पाइन सीधा। ये एक ध्यानात्मक आसन है। इसमें ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं और सबसे अच्छी बात है इसकी, जिसमें बहुत देर तक स्पाइन स्ट्रेट रहता है। और इसकी सबसे खासियत है, जो खाना खाने के बाद यानी भोजन के उपरांत सिर्फ एक यही आसन है जिसे किया जा सकता है। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसका नाम वज्रासन इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे नितंब की तरफ वज्र नाड़ी होती है। वो वज्र नाड़ी हमारे हिल से दबती है, इसलिए इसका नाम वज्रासन रखा गया है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारा थाई घुटना मजबूत होता है। लेकिन जिनको आर्थराइटिस की समस्या है वो नहीं करें। जिनको बहुत ज्यादा घुटने में या टखने में पेन है या टखने में किसी तरह का प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना है। तो ये अवस्था है वज्रासन का। इसमें 10 से 15 सेकंड बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम। आप इसको उसी तरह से वापस आ सकते हैं। जैसे राइट तरफ थोड़ा सा हाथ पे प्रेशर लिया तो आगे हाथ को लेकर के, फिर लेफ्ट तरफ हथेली पे प्रेशर लिया तो दोनों पैर सीधा हो गया और दो फिर से आ जाएंगे दंडासन में। इसके बाद हमें करना है अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन का अभ्यास। अर्ध उष्ट्रासन के लिए फिर से वज्रासन की अवस्था में आएंगे। तो फिर से वज्रासन में आ जाएं, अपने घुटने पे खड़े हो जाएंगे। घुटने पे खड़े होकर के इसको अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। आधा उष्ट्र मतलब ऊंट, ऊंट के समान इसमें स्थिति बनती है, कुबड़ की तरह निकलता है, इसलिए शरीर की स्थिति, इसलिए इसको उष्ट्रासन कहते हैं। तो उष्ट्रासन में दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेली कमर पे, हथेली की उंगलियां इस तरह, हथेली को इस तरह रखना है जो उंगली नीचे की तरफ हो जाए और दोनों एल्बो को क्लोज करिए जिससे चेस्ट एक्सपेंड होगा। जिनको पेप्टिक अल्सर या फिर
हॉर्निया वगैरह का प्रॉब्लम हो या एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, उनको नहीं करना है। ये तो ये आसन बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा फैट इससे जाता है शरीर का। उसके बाद गर्दन और पेट के लिए तो अच्छा है ही, हृदय रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अपने दोनों एल्बो को क्लोज करें, जितनी आपकी क्षमता है अपने बैक को बेंड करें, यानी सिर को पीछे की तरफ ले जाए और होल्ड करके रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाएंगे वापस आराम से आकर के। इस अवस्था में आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। जिनका शरीर और ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो उष्ट्रासन में जा सकते हैं। उष्ट्रासन में जाने के लिए दोनों हथेली अब पैर के पास चला जाएगा। इसी अवस्था में आएंगे, दोनों हथेली से दोनों हील को या पंजे को टच करेंगे। इसके लिए फिर से आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अपने घुटनों पे, दोनों घुटनों में पैरेलल गैप, जितना आपका कमर है उतना ही, जितना घुटने में गैप उतना आपके पंजे में गैप। उसके बाद अपने कमर को आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को और राइट से राइट फुट को टच करेंगे, या तो हील टच करें या फिर हथेली लगा दें और जाकर के बने रहें। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो करें, जिनको तकलीफ है वो अर्धउष्ट्रासन करें और होल्ड करेंगे 15 सेकंड। तो जाएं 1 जी, बहुत बढ़िया। सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर को आगे की तरफ होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाएंगे वापस। डबल चिन जिनको बनता है उसके लिए भी आसन बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये आसन करें। और जब कभी भी हम बैक बेंडिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। तो नेक्स्ट आसन है शशक आसन या शशांक आसन कहा जाता है। शशक मतलब होता है रैबिट, खरगोश, इसलिए इसको उसके नाम पे रखा गया है शशक आसन। कहीं पे कहा जाता है जो शशांक आसन भी इसका नाम है, तो शशांक का मतलब चंद्रमा होता है। चंद्रमा में चूंकि शीतलता होती है तो ये क्रोध, गुस्से, तनाव को कम करता है, इसलिए इसका नाम शशांक आसन है। तो वो अपना अपना ध्येय है, इसमें कोई नहीं कर सकते हैं, आराम से इसके नाम पे जाए। तो हम आएंगे, आप करेंगे शशक आसन। शशक आसन के लिए वज्रासन में बैठ के दोनों पैरों के अंगूठे को मिला दिया, दोनों घुटने में आपसे जितना गैप होता है गैप कीजिए, दोनों हथेली को फिसलाते हुए आराम से आ जाएंगे। अपने सिर को, जिनसे सिर नहीं लगता है वो मुट्ठी पे मुट्ठी बनाए, मुट्ठी पे अपने सिर को रखें। लेकिन जिनका सिर लग जाता है वो सिर लगाएंगे मैट से। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे अच्छी है वो अपने चिन को लगाएंगे, चेस्ट को लगाएंगे मैट से। दोनों हथेली आगे पैरेलल होंगी दोनों। आपका चिन, चेस्ट और यहां तक कि आपकी नाभि अगर लग जाए तो और भी अच्छी अवस्था है, लेकिन आपका हिप आपके हील से टच होते हुए होना चाहिए। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करेंगे, यहाँ पे 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। जिनको टखने में, घुटने में दिक्कत है वो नहीं आएंगे वज्रासन सीरीज के आसन में, वो आराम से बैठ के इसको सीख लीजिए। तो सांस भरे सांस छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। शशांक आसन से वापस आने के लिए धीमे धीमे वापस। यह है शशांक आसन। यहीं पे इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, उत्तान मतलब उठा हुआ, यानी खड़ा मेंढक जो होगा उसके शरीर के जैसा इसमें शरीर की आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम है उत्तान मंडूक। उत्तान मंडूक में फिर वज्रासन में ही बैठ रहे हैं और दोनों घुटनों में गैप कर रहे हैं। जितना आपसे गैप होता है आप मैक्सिमम गैप कीजिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा के ले जाएंगे, कोहनी से मोड़ते हुए दाएं से बाएं कंधे को, बाएं से दाएं कंधे को टच करेंगे। उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि हर एक आसन में
हर एक आसन की अपनी एक एक खासियत होती है। इसमें चेस्ट एक्सपेंड होता है, ऊपर की तरफ आपकी लंग्स उठती है, इसलिए लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है और स्पाइन स्ट्रेट रहता है, आपकी पिंडली, आपका जंघा मजबूत होता है। उत्तान मंडूक आसन, इसमें बने रहें कुछ पल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हाथ को बदलना है, यानी जो हाथ ऊपर है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे चेंज किया और जा करके फिर से अपोजिट कंधे को अपने शोल्डर को टच करके होल्ड कर रहे हैं। गहरा गहरा सांस लें, गहरा गहरा सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएंगे। कभी भी धीरे धीरे आसन में जाना है और धीरे धीरे वापस आना है। दोनों हथेली को नीचे कर देंगे, दोनों पैरों के घुटने मिला देंगे वज्रासन में। अब यहाँ से हम आ जाएंगे फिर से दंडासन में। दंडासन के लिए फिर इस तरह से निकाल सकते हैं या दोनों पैरों को एक तरफ से निकाल करके दो करें और दंडासन में बैठ जाए। अब अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या ऐंठा हुआ। चूंकि हम अपने स्पाइन को इस आसन में थोड़ा सा मोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम होता है वक्रासन। वक्रासन चूंकि पैनक्रियाज पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसको शुगर के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, चेस्ट एक्सपेंड होता है। लेकिन जिनको पीरियड्स आया हुआ है या जो प्रेगनेंसी में है उन्हें नहीं करना है। जिनकी कोई सर्जरी हुई है एब्डोमिनल, उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही करना है। तो आ जाएंगे, अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए लेफ्ट लेग सीधा है, राइट फुट को हमने फोल्ड किया, घुटने से मोड़ा और राइट पंजे को लेफ्ट घुटने के पास रख दिया। क्योंकि हमने अपने राइट लेग को फोल्ड किया है, इसलिए लेफ्ट हैंड को लेकर के आएंगे दूसरी ओर। ध्यान से देखें, आगे की तरफ है, हथेली आप जमीन से भी लगा सकते हैं, पंजे को भी पकड़ सकते हैं, या नहीं लगता है तो ऐसे भी रख सकते हैं, जितना कंफर्टेबल है। प्रयास करना है कोहनी आपके घुटने को दबाए, इस तरह से पकड़े और जो राइट हैंड है, राइट हैंड को स्पाइन के सामने ले जाएंगे। हो सकता है सारा वेट राइट हैंड पे जा रहा हो, कोई बात, राइट हैंड को नजदीक करते जाएंगे तो आपका सारा वेट आपके, अब चूंकि शरीर इसमें मुड़ गया इसलिए इसका नाम है वक्रासन। इसमें कुछ देर बने रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वक्रासन। आ जाएंगे वापस। उसके बाद इसी आसन को दूसरी ओर से करना है, यानी राइट लेग सीधा, लेफ्ट फुट को फोल्ड किया, राइट हैंड को ले गए लेफ्ट के दूसरी ओर पैर के। अब एल्बो से नी को प्रेस कर रहे हैं, हथेली से अपने पंजे को पकड़ लिया, यानी राइट हैंड से लेफ्ट पंजे को पकड़ा थोड़ा सा घुमाते हुए और लेफ्ट हैंड को स्पाइन के ठीक सामने ले जा करके होल्ड कर दिया। तो धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल, ध्यान दे जो आपका चिन जो है आपके कंधे के बराबर में आए और होल्ड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाएंगे वापस, धीरे से आ जाएंगे वापस। दोनों पैरों को सीधा करें, गहरा सांस भरे, गहरा सांस छोड़ें। ये हमारा बैठकर किए जाने वाला आसन है।
बैठकर जब हम आसन कर लेते हैं उसके बाद हम करेंगे उल्टा लेट करके, यानी खड़े होकर के हमने कर लिया, फिर बैठ के कर लिया, अब हम उल्टा लेट के करेंगे। उल्टा लेट करके जब हम रहते हैं वहां भी हमें एक स्थिति में रहना होता है, वो है मकर आसन, यानी रिलैक्स वाला पोज एक एक कर जरूर चुने रहेंगे। जिससे क्या होता है, उसमें आपको हर एक दो आसनों के बीच में थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है और आपका शरीर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए आप उल्टा लेटेंगे मकर आसन में। मकर मतलब मगरमच्छ या गाल। उस अवस्था में चूंकि मगरमच्छ रहता है इसलिए इसका नाम मकर आसन रखा गया है। तो मकर आसन में आने के लिए आराम से उल्टा लेट जाएंगे, आराम से उल्टा लेटे। मकर आसन इस तरह से होता है। थोड़ा सा पहले 2 से 3 बार सांस लें, सांस छोड़ें। हथेली पे बॉल या चिन को रखेंगे। दोनों पैर एक दूसरे के अपोजिट, पंजे बाहर की तरफ। तो पवन मुक्तासन में 15 सेकंड होल्ड करके आपको वापस आना है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के छाती से लगा लेना है और दोनों पैरों को अच्छे से अपने हाथों से पकड़ लेना है। जिनको सर्वाइकल का इशू है वो सिर ना उठाए, नहीं तो आराम से उठा करके अपने सिर को लगा सकते हैं घुटने से या चिन को लगा सकते हैं और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीमे से सिर को नीचे करें, हाथ से पैर को छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, आराम से नीचे। जिनके कमर में दर्द हो वो सीधा कर लेंगे ऐसे ही पैर को। ये तो इस तरह से प्रक्रिया में आना है और होल्ड करना है और कुछ पल के लिए शवासन में आपको बने रहना है। कुछ देर स्थिर और शांत हो जाएंगे, एकदम शांत। आपने खड़े होकर के आसन किया, बैठ के आसन किया, सीधा उल्टा लेट करके आसन किया, फिर सीधा लेट करके आसन किया। अब अंत में कुछ पल के लिए शवासन लें। शवासन में दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का अंतर। दोनों पैरों को हिला के देख लीजिए, दोनों हाथों को हिला करके नीचे रख दीजिए। आधे फुट का अंतर दोनों हाथों वाले में, यानी बॉडी से हाथ के बीच में कम से कम आधे फुट का अंतर हो। हथेली का मुख आसमान की तरफ हो, उंगलियां आधी खुली आधी बंद, शरीर शिथिल, शांत, निढाल। पूरी तरह से स्थिर कर दे अपने शरीर को। आंखें बंद कर लें, कुछ पल के लिए इसी अवस्था में बने रहें। यह है शवासन। तो कुछ पल के लिए इस अवस्था में बने रहेंगे। आपको जब तक हम ना कहें आपको उठ करके वापस नहीं आना है। तो स्थिर और शांत हो जाइए। कमर, गर्दन, पीठ एक सीध में, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, शांत, निढाल। हर एक एक्सलेशन के साथ बॉडी का वेट मैट की तरफ ट्रांसफर करना है। कहीं कोई हलन चलन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। जितनी बार शरीर को ढीला छोड़ेंगे, सांस जितनी बार छूटेगा उतना शरीर ढीला हो जाएगा। इतना ढीला, इतना निढाल कि आपके मैट में धंसता हुआ प्रतीत हो शरीर। एकदम स्थिर, निढाल, कोई पकड़ नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अवरोध नहीं। एकदम शांत। आंखें बंद हैं, दोनों पैरों में गैप है, पीठ के बल आप लेटे हुए हैं, दोनों हाथों में भी गैप है। हथेली का मुख आसमान की तरफ। ध्यान से सुने, शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं। नाम है इसका शवासन, शव की तरह आसन, डेड बॉडी की भांति, जो सबसे आसान दिखता है लेकिन सबसे कठिन, सबसे टफेस्ट माना गया है योग में इसे। पूरी चेतना, पूरा अवेयरनेस, सिर्फ सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। नदी की भांति बहने दे, कोई विरोध नहीं, कोई अवरोध नहीं, कोई पकड़ नहीं। एकदम निढाल शवासन में लेट करके अब हम थोड़ी देर योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं।
जितना अपने शरीर को खींचा है उससे शिथिलता प्रदान करें अपने शरीर को, एकदम शांत। अब जितना आपका शरीर निढाल है उससे और निढाल छोड़ने के लिए हमारे द्वारा निर्देशित अंग पे आपको अपना ध्यान ले जाना है, यानी आंखें बंद सिर्फ अवेयरनेस को उन अंगों पे लेकर के जाना है, उस ऑर्गन्स पे लेकर के जाना है जिसका नाम मैं ले रही हूं। तो आप शवासन में लेटे हुए हैं। अब अपना ध्यान, अपनी चेतना अपने शरीर के दाएं भाग पे ले जाइए। राइट लेग के टोज पे अपना ध्यान केंद्रित करें, उसे रिलैक्स छोड़ें। आंखें बंद, सिर्फ मन को ले जाना है, अपनी चेतना को ले जाना है। राइट लेग के टोज, फुट को रिलैक्स कीजिए, एंकल जॉइंट को रिलैक्स करें, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, थाई जॉइंट को रिलैक्स करें। राइट लेग को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट लेग के टोज, फुट, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, थाई जॉइंट को रिलैक्स करते हुए अपने राइट लेग को भी रिलैक्स छोड़ेंगे। हिप और हिप जॉइंट को पूरी तरह रिलैक्स कराइए, यानी बंद आंखों से अपने हिप और हिप जॉइंट को देखें, उसे रिलैक्स छोड़ दें। पूरे बैक को रिलैक्स कराएं, एकदम शांत स्थिर हो जाएं, आंखें बंद रखें। संकल्प लें, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस संकल्प को लें, आंखें बंद ही रखें। धीमा लंबा गहरा सांस भरें। शांति पाठ के लिए एक बार ओम सर्वे भवन्तु करेंगे, तो गहरा सांस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को जोड़ के नमस्कार की मुद्रा बना लें। अपने माता, पिता, गुरु और इष्ट देव का ध्यान करें, उन्हें नमन करें, धन्यवाद दें, क्योंकि आज हम जो हैं, जहां हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग है। इस भाव से दोनों हथेली को कर्व करके अपने पलकों पे ले जाएं। पलकों पे हथेलियों की ऊष्मा को महसूस करें। भीतर ही 2 से 3 बार आंखें खोलें, बंद करें। धीमे से अपनी हथेली हटाएं, हथेली से पूरे शरीर को स्पर्श कर जाएं। धीमे से अपनी आंखें खोलें। नमस्कार, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, रोज अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। Thank you, Swati ma'am, for this wonderful and marvelous session. It has been a privilege to have been able to learn yoga under your guidance and inculcate yoga in our daily lives. Now, I would like to invite Professor Vijender Singh, Dean of Students Welfare in NSUT,
to give the vote of thanks. Over to you, sir. So, Professor J.P. Saini, sir, Honorable Vice Chancellor, NSUT, Sri Jangji Long, Regional Director of NSS, Professor Mamta Sharma, Principal, Aditi Mahavidyalaya, Sri T. Bhutia ji, NSS State Coordinator, Sikkim, Director East Campus, Professor Prerna Gaur, Director West Campus, Professor A.P. Mittal, Yoga Acharya Ms. Swati Jha, Dr. Praveen Saroha, Director Physical Education, NSS officers of different colleges, faculty members, officers, staff members, and dear participants, very good morning to all. I hope everything is fine in this pandemic scenario. A very happy International Yoga Day to all the participants. 21st June is the largest day of the year in the Northern Hemisphere and has a special significance in many parts of the world. Yoga is mandatory nowadays for every individual to be active. It is proved in research that different parameters of body can be improved by yoga and meditation. Okay? That's why yoga is necessary in this very tough season. First of all, I would like to thank our visionary and dynamic leader, Professor J.P. Saini, sir, our Honorable Vice Chancellor of NSUT, who have provided all the support for this workshop. I also thank Sri Jangji Long, Regional Director of NSS, to give all the support and to inspire the students from different states to participate in this motivating workshop. I thank the Yoga Acharya Ms. Swati Jha, who accepted this invitation of 1 week long yoga workshop, and today she is also taking 2 hours long yoga class, and this is a very inspiring for all of us. I thank Professor Mamta Sharma, Principal, Aditi Mahavidyalaya, DU, to support the workshop wholeheartedly. I thank to Mr. T. Bhutia, NSS State Coordinator, Sikkim, for this active support and participation in this workshop. A great thank to Dr. Praveen Saroha, Director Physical Education, all NSS officers of different units from all over India to make this workshop successful. I also thank to all the participants who enthusiastically participated and get the knowledge of yoga to be the part of their life. With these words, thank you and best of luck. Thank you, sir. Thank you, sir. So nice of you. It's a great honor for us that you have joined us, and our Honorable Vice Chancellor also has joined this session. So it's a great honor for all of us who have joined this program. Sir, thank you. Thank you to all the participants and all the organizers and all the Ek Bharat Shresth Bharat partner state of our Delhi state. Thank you. Thank you all. Finally, I request everyone to turn on their cameras for a group photo. Thank you everyone for participating in the yoga session and attending it. The meet is over. Thank you all. So I would like to thanks all the collaborating institute with us in this 7th International Yoga Day, all the collaborating institutions and the partner state of our under Ek Bharat Shresth Bharat scheme, Sikkim state. I would like to thanks all these participants and especially the collaborating institutions. We have the list of NSS unit of Chaudhary Brahm Prakash Ayurvedic Charak Sansthan, Delhi. We have also NSS Acharya Narendra Dev College of Delhi University, NSS Jawaharlal Nehru University, NSS Deen Dayal Upadhyay College of Delhi University, NSS Janki Devi Memorial College of Delhi University, NSS Shri Govind Ram Sikersia Institute of Technology and Science, Indore, NSS Arya Bhatta of Delhi University, NSS NKTT Mumbai, NSS MGC Kerala, NSS DG NSS Mumbai, NSS Bokaro Steel City College Jharkhand, NSS Institute of Home Science Economics Delhi University, NSS Aditi Mahavidyalaya College of Delhi University, NSS Government Arts College Andhra Pradesh, NSS Delhi School of Professional Studies and Research Delhi, NSS of Motilal College Nehru Delhi University, NSS of SS Jain Subodh PG College Jaipur, and finally all the societies of NSUT, Prayas and Rotaract.
So I sincerely thanks to all of you, and especially thanks for our SRM University of Sikkim and Government Senior Secondary School, Kaizang, South Sikkim. Thanks one and all. Thank you very much. Thank you, everyone. The session is over now. You all can leave. If please fill the feedback form available in the chat box. If anyone doesn't get the link of feedback form, then you can share that link to us. Thank you very much. Thank you, Dr. Gaurav sir from Kelcom, and thank you, Dr. Sunita Jetli ma'am from Acharya Narendra Dev College, NSS Program Officer, and also thanks to NSS SS Jain Subodh College, Jaipur. Thanks to Dr. Richa ma'am and Dr. Preeti ma'am. Okay, then you all can now leave this session. Over.